So I said that there is who is this British Crown, and there is an SOS, and there is, I said that, Dufferin. Yes sir, no? And we have seen that this is the phase in which we have been able to find that large number of movement started here and there. Yes sir, and it is the urgent need, should be safety wall. Yes sir. तो दो चीजें हैं यहाँ पर. One, it is I said that we have to talk about, I said that, nationalism. Yes sir. So if I am talking about nationalism, and another one, I said that we understood nationalism, and this, because of this nationalism, British Parliament and British Crown and then SOS, everyone realized that there is a great revolt is about to come. And when the great revolt is about to come, it means, I said, the situation is bad, and directly he has called upon one person who is, what I said, that A.O. Hume. आपको ये पता हो कि I said that, आपको याद हो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उसके अंदर ब्रिटिश सॉरी 15 मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल, बट एक और होता है, सेक्रेटरी भी होता है. Who is to be secretary? Who is to be under the secretary of the state, and who has the power to appoint? It is the secretary of the state to appoint. Yes sir. So A.O. Hume was the secretary. A.O. Hume, during the Lytton period, he was the secretary, understood, under the secretary of the state, and he has already performed very well before the 1857 revolt and during the 1857 revolt, and he was an IAS IPS officer, and he has done very well. And he, I said that everyone believes the way that he has performed for the betterment of the Indian people. So A. Hume was a good figure for the India, and and Lytton has said something already during his Governor General period. He asked I said, A. Hume to do something, and he denied that, I will not do that, and thereafter he has been removed from his post. Lekin everybody knows that he is a well-wisher of Indian, and that is, I said, that every Indians realize. So at that time, I said that Dufferin and all have said that British Crown and SOS said that कि किसको बोला जाए, और यहाँ पर भी एक SOS है, उनका नाम है लॉर्ड क्रॉस. लॉर्ड क्रॉस A.O. ह्यूम को बुलाया गया, और A. ह्यूम से बोला गया कि यू हैव टू गो एंड आस्क द, आई सेड दैट जेंटलमैन ऑफ इंडिया, एंड जनरली उस समय जितने भी जेंटलमैन हुआ करते थे, दे आर वेल्दी पीपल, आर व्हाट आई सेड दैट लॉयर्स. कौन थे ये लोग? लॉयर्स. उन लोगों से डिस्कशन किया, डिफरेंट एसोसिएशन से डिस्कस किया. यस सर. एंड देयर आफ्टर उन्होंने बोला कि यू शुड हैव, आई सेड दैट यू शुड मेक एन वन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन पुट योर, आई सेड दैट, petition to the, I said that, British India. इसको आप अपना petition डालें, and who will be Governor General of India. इन लोगों को कुछ हद तक अच्छा लगा कि चलो, that is the best way to, what I say, approach to the people, the Governor General of India, and इससे बेटर कुछ और हो नहीं सकता. तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ, फॉर्मेशन in 1885, and Omesh Chandra Banerjee, he became the first. Yes, tell me. Yes sir. तो मेरे साथ बोलेंगे, ओमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दिनशा वाचा, सुब्रमण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता, S.N. Banerjee. These are the important portions are there at that time. कौन कौन से थे? Yes, tell me. I said that
WC बनर्जी, ऑलरेडी यू नो दैट, यस। उसके बाद हम लोगों ने किसका नाम बोला? बदरुद्दीन तैयब जी, यस और नो? तो बैड सिचुएशन कब आया? दिन में आया। कब आया? अरे बैड सिचुएशन कब आया? दिन शाह वाचा। दिन में कब? सुबह या शाम? सुबह। सुब्रमण्यम अय्यर कब आया? सुब्रमण्यम। कौन कौन सा मैंने बोला? आई सेड दैट बदरुद्दीन फर्स्ट, आई सेड दैट WC बनर्जी, देन आई सेड दैट बदरुद्दीन तैयब जी, दिन शाह वाचा, देन सुब्रमण्यम अय्यर, फिर आई सेड दैट फिरोज शाह मेहता, एशन बनर्जी। दीज आर द फेमस लीडर एट दैट टाइम, यस आना। और इनके अंडर में क्या किया गया स्टेट में? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इज इट क्लियर टू यू? यस। क्या क्या नाम था, याद हो गया आप लोगों को? यस, क्या क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी, दिन शाह वाचा। दिन शाह वाचा DINSHAW वाचा, दिन शाह वाचा, यस आना। सुब्रमण्यम अय्यर सुबह सुबह, फिरोज शाह मेहता, SN बनर्जी। इट इज क्लियर टू यू? सो कैन यू रिमेंबर ऑल दिस नेम्स? याद हो गए? विच आर द नेम्स? इट इज क्लियर, दे आर एसोसिएटेड विद दिस। अब इनका दे हैव रियलाइज्ड ऑल, और उनको अब रियलाइज हो रहा है कि व्हाट नाउ ड्यू टू द नेशनलिज्म, नाउ दे आर रियलाइजिंग व्हाट इज नॉट देयर इन 1861 एक्ट। Now they realized, because I said that slowly and slowly they started interpreting, and first time हम लोगों ने अपने फेवर के लिए बात करने लग गए after getting the knowledge about the nationalism. After that we started coming into the platform like this, yes or not? Or nationalism means we started fighting together, all nation, yes or not? So nationalism started asking for that. I said several things, जितने भी चीज आप बोल सकते हो आप बोल दो। इंडस्ट्री के लिए बोलना चाहते हो इंडस्ट्री बोल दो, एग्रीकल्चर बोलना चाहते हो एग्रीकल्चर बोल दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, दैट ऑल दे हैव डिमांडेड। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल, मीन्स जो चीज चाहिए दे हैव आस्क्ड। इन विच आफ्टर द 1861 एक्ट इन्होंने देखा कि देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली देयर शुड बी, कहने के लिए तो नॉन ऑफिशियल है बट देयर इज नॉट। वहां पे क्या था? वो भी नॉमिनेटेड ही था। On the paper it should be non-official more than official, यही था ना 1861, but it was not there. तो I said that जो जो चीज आप अच्छी अच्छी डिमांड कर सकते हैं वो आप बोल सकते हो। एज एन आई सेड दैट, उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट आई सेड दैट Indians, in which one I said that? Legislative Council. In I said that what? Executive Council. ये तो मांगेंगे ही मांगेंगे, यस सर, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी होने के लिए दे वांट, आई सेड दैट दिस वन शुड बी देयर। उन्होंने बोला चलो हम लोग आपको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये सब दे रहे। आई सेड दैट इट इज ऑल्सो प्रोविंशियल legislative council, there should be also what? They demanded what? ये सब कब हुआ? After the 1885. It started happening after what? 1885. और इन सारे वर्ड्स को कौन सुन रहा है? Dufferin and Lord Cross. Who is watching this and listening it? Dufferin and Lord Cross. So it is, I said that provincial legislative council. So they demanded provincial. They demanded, I said that budget. We should also discuss what? Budget. And it should be favor of what? Indians favor. किसके फेवर में हो? बजट। Yes or not? The purse of exchequer should be under the what? I said that. And we can ask question. Ask
क्वेश्चन बाय इंटरप्टिंग इन बिटवीन, ध्यान से. If it is, I said that council is going on, interrupting in between, I can ask question by interrupting. What? Meetings. सारा कुछ डिमांड कर रहे हैं. Another, दादा भाई नौरोजी ने कहा, I said that India is in poverty due to economic exploitation done by Britishers, and that is, I said that drain of wealth, therefore India is poor. Who said? Is it clear? तो आप जितने भी सिस्टम में आफ्टर कमिंग फिलिंग ऑफ, आई सेड दैट व्हाट, फिलिंग ऑफ व्हाट, एवरीथिंग, कि नेशनलिज्म ये हो चुका है, उनके ब्लड में नेशनलिज्म की भावना आ गई, ऐसा ना. एंड द ब्रिटिशर्स भी, उनको एक तो इंसान को सेंस हो जाता है कि सामने वाला डरा हुआ है कि नहीं डरा हुआ, एंड इट हैज बीन सेंस्ड बाय हुम, इंडियंस, ऐसा ना. सो ये सारी चीज़ डिमांड कर रहे हैं, बजट में, प्रोविंशियल, सब चीज़ में हमारा, इसमें प्रेजेंस भी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, दैट दे हैव डिमांडेड. इट इज क्लियर. एंड द लास्ट में नारोजी ने क्या कहा, बोला यस, द ड्रेन ऑफ वेल्थ. इज इट क्लियर? अब क्या डिमांड हो रहा है, ध्यान से. द डिमांड इन द इंडस्ट्री, सेफगार्डिंग द इंडियन इंडस्ट्री. क्या करो, इंडियन इंडस्ट्री को क्या करो, क्योंकि इसी डिमांड को लेकर ही आप देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट इन 1905, ऐसा ना. स्वदेशी मूवमेंट इन 1905, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, व्हाट कम, स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट रेजोल्यूशन, मिस व्हाट, आई सेड दैट, दूसरों को हटाओ, अपना. सो ये, इसका कंसेप्ट आज नहीं, बहुत पहले ही आ गया था. दिस कंसेप्ट हैज कम अर्लियर. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, safeguard of Indian industry. Yes, I said that हमारा क्या होना चाहिए, I said that export of raw material क्या होना चाहिए, reduced, import of finished goods क्या होना चाहिए, reduced. Yes, there should be a financial system to safeguard industry. Yes sir, इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम होनी चाहिए, आज भी है कि नहीं. सो फाइनेंशियल सिस्टम टू सेफगार्ड इंडस्ट्री. एंड आई सेड दैट एग्रीकल्चर को लेकर देखा जाए, मतलब आपको दिख रहा है क्या मांग रहे हैं जो आज के डेट में है, एवरीथिंग दैट दे आर डिमांडिंग, और वो किसकी वजह से, फीलिंग ऑफ नेशनलाइजेशन. और ये सारा चीज क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, थोड़ी देर में आ जाएगा ये फीलिंग की इंडियनाइजेशन. क्या मांग रहे हैं, yes or not, everything should be of, yes or not. इसके डिमांड में दिख रहा है कि सब कुछ इंडिया का हो, इंडियनाइजेशन. एग्रीकल्चर, आई सेड दैट लेस फूड शुड बी एक्सपोर्टेड, क्योंकि सारा फूड क्या हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, हमारी पॉवर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस, सो दैट पॉवर्टी कैन रिड्यूस. यस आना. एंड एग्रीकल्चर को सेफ्टी के लिए और इसके लिए और क्या प्रोवाइड करना है, यस टेल मी, इरिगेशन,
प्रोवाइड करो इरिगेशन, एंड इनके लिए भी आई सेड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करना है, इस्टेब्लिश। एसेट के लिए हेल्थ वेल्थ सब कुछ मान लो, इस के लिए दिस इज द डिमांड ऑफ व्हाट। और वो नाम याद है आप लोगों का, कौन? WC बनर्जी, यस WC बनर्जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, दिनशा वाचर, सुब्रमण्यम अय्यर, रोशा मेहता, एस बनर्जी, और धीरे धीरे गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह भी आपको दिमाग में याद हो ही जाएंगे, यस है ना। दादा भाई नौरोजी तो सबको याद होगा, ये सब बोलना जरूरी है क्या? धीरे धीरे नाम ही तो मुझे याद कराना है, याद हो गया ना। दादा भाई नौरोजी अलग से, और कौन सा और एक नाम बोला था अभी मैंने, GK गोखले क्लियर, और धीरे धीरे एक और एड ऑन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। कौन हो गया? ठीक है ना। इनको 1890 से इनकी वोट लगा रहे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बिकम फेमस इन द 1890s, इट्स नॉट इन द 1950, यस सर। सो we are going to see, I said that this demand has been done under the influence of, I said that Indian National Congress formation, and then 1885 से लेकर जो कि 1905 का जो फेज कहा जाता है, it is the phase of moderate phase of moderates, and we can be able to see actually में उनका जो thought था, ध्यान से मैं पहले से समझा दूँ कि their thought था कि we in the present Indian history we are in a situation, if we'll become independent we cannot rule better. Their thought was there कि the situation that India is having, if we become independent, if we demanded harshly, we will not be able to rule. So let them rule with this little bit demand and make the situation better for us. उनका यही सोच था, and to an extent it was also okay if you start asking something और आज मिल जाता तो शायद ये हो सकता था कि इंडिया जो आज के डेट में ऐसा इंडिया नहीं होता, इट कैन बी एन डिवाइडेड इंडिया, ऐसा ना, पॉसिबिलिटी इज देयर। तो देयर थॉट ऑफ, आई सेड दैट मॉडरेट्स दैट वी शुड बी, आई सेड दैट वी आर नॉट इन द सिचुएशन टू गवर्न, वी आर नॉट इन द सिचुएशन टू गवर्न, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई सेड, ध्यान से, आपका पहला जो है डिससेटिस्फेक्शन ऑफ what are the circumstances under which Indian Council Act 1892 came? तो पहला वर्ड है यस, dissatisfaction of Indian Council Act 1892. Any Indian representation? Actually में बोला गया था ना, पहला लाइन ही बोला था यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल में there will be 6 to 12 it has become, and then more than half should be what? Non-official. More than half should be what I said that. So क्या ऐसा हुआ? So whatever it has been said, it has not been followed. यही मेन मेजर था। अगला तो वो चीज़ हमें जरूरत नहीं था। उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल हैज़ द पावर टू मेक अ न्यू प्रोविंसेस, यस और नॉट, एंड इट विल बी गवर्न बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यस। तो ये सब हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के लिए था कि इंडियन शुड बी रिप्रेजेंटेड एज फार एज द सर सैयद अहमद खान एंड बाटले महोदय हैज सेड, यस और नॉट, कि देयर शुड बी है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ India, yes or not? So, and it has not been followed. So this is, I said that dissatisfaction of what? Indian Council Act. It is clear to you? लिख लिया आप लोगों ने? तो जितना लिखवाते जा रहा हूँ उतना ही लिखते जाइएगा। Next one I said that perhaps हम लोगों ने ये भी कर लिया है, spread of Western education and political consciousness क्या है? What is the meaning of consciousness? Getting aware. हाँ, very good. Aware about. और जब आप किसी चीज से अवेयर होते हो और you acknowledge and other also acknowledge it, yes or not? Awareness level is looking like vague. And when you acknowledge, that becomes at the level of what? Consciousness, yes or not? हमने क्या बोला? एक्नॉलेज का मतलब यू हैव व्हाट एक्नॉलेज इट, एक्सेप्टेड इट, यू फाइंड इट इज करेक्ट और रॉन्ग, यस ना। सो पॉलिटिकल अवेयरनेस, और अवेयरनेस किस में कन्वर्ट होना है?